Hello everyone. Due to time shortage, I'll be keeping videos very raw, unedited, and directly to the point. Okay, so I'm not getting to all that presentation stuff and all that. सीधा question discuss करेंगे. So this was a question given in Telegram group. So let's discuss this one by one. The statements, they are really cool. So let's go. पहला statement है nitrobenzene is used as solvent in Friedel-Crafts reaction. Good statement. इसको हम सर्कल कर लेते हैं. This is not in NCERT. However, this is really very important because Friedel-Crafts reaction is an integral part of JEE Advanced syllabus and उसमें से क्वेश्चन बाहर से पूछे जा चुके हैं. So we have to keep that in mind. Now coming to this compound which is called nitrobenzene. See, one thing which is very clear because of deactivating nature of NO2, this compound is very unreactive towards Friedel-Crafts reactions, FCA. FCA can be Friedel-Crafts acylation or alkylation. Okay. And just an extra bonus point, I'll be giving you very much idhar udhar ki knowledge in while giving this question. So this thing goes like this in reactivity. So this is also very unreactive and also pyridine की जो रिएक्टिविटी होती है वो कंपेयर करी जाती है नाइट्रोबेंजीन के साथ. सो दीज बोथ आर वेरी अनरिएक्टिव टुवर्ड एफसीए. Like as far as I know, pyridine is instead said to be as equivalent to dinitrobenzene. So it is very unreactive. So pyridine का भी आया तुम्हारे. वैसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ज्यादा है नहीं सिलेबस में, बट अदरवाइज जस्ट रिमेंबर इट इज वेरी अनरिएक्टिव इन एफसी. Coming to second, benzaldehyde does not reduce Ferring solution. So yes, benzaldehyde, pH, CHO. So we have the CHO group needed for Ferring solution reduction, but we have pH here. So ARCHO, that is aromatic aldehydes, do not reduce Ferring solution. Also, not to mention ketones do not reduce Ferring solution. ठीक है, इतना ही याद रख लो. बाकी फेलिंग सोल्यूशन पे एक अच्छे से आराम से मैं बाद में डिटेल कुछ बता दूंगा, बताना होगा तो. Otherwise, this much basic is enough. So benzaldehyde does not reduce, is right. Ammonium disulfide is used for selective reduction of metadinitrobenzene. A good point. So this was in NCERT. This is some prediction. This is PYQ here, right here. So yeah, let's go. ये है तुम्हारा कंपाउंड जो तुम्हें दिया गया. तो ये जो है, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, अमोनियम डाइसल्फाइड. This has been asked in JEE Advanced PYQ. So sorry for the spoilers. But yes, anyways, टीचर्स पढ़ाने लगे गए होंगे तुम्हें ये सब, तो PYQ में आ चुका है. तो NH4HS आ जाए, NH3Na2S आ जाए तुम्हारे पास, NH3H2S आ जाए. इनमें से अगर कुछ भी आ रहा है तो समझ लेना हमें यहाँ पे क्या कराना है, पार्शियल रिडक्शन करा देना है. So NO2 से NH2 कन्वर्ट हो जाएगा. Now, this thing is not in NCERT, however, was still asked in PYQ. Why? Because this thing, reduction of nitrobenzene, is mentioned in syllabus as it is. So you have to keep track of the syllabus. इस syllabus में पूछा क्या जा रहा है, syllabus में क्या बोला जा रहा है. So reduction of nitrobenzenes is in syllabus and hence उसने ये थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप जाके क्वेश्चन पूछ लिया. तो हमें ऐसी चीजों में आउट ऑफ स्कोप घुसना है थोड़ा सा जहां पे वो एग्जैक्टली मेंशन्ड हो सिलेबस में. आगे देखते हैं. Direct nitration of aniline gives para-nitroaniline as major product. Good question actually. Let's come to this. Let me clear this. ये एनिलीन है हमारे पास, ठीक है, सिंपल. पढ़ रखी है हमने रिएक्शन इसकी बहुत ही अच्छे से, काफी जगहों पे पढ़ रखा है कि जब इसका नाइट्रेशन कराते हैं ना, नाइट्रेशन बोला है, नाइट्रेशन एनिलीन क्या प्रोडक्ट देगा ये बोला है, मेजर नाइट्रेशन. तो नाइट्रेशन दो टाइप से कराई जा सकती है. पहला, मैंने इसमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दिया. दिस, अरे, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट नाइट्रेशन. ठीक है, डायरेक्ट, बिकॉज हम डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल रहे हैं. दूसरा नाइट्रेशन इसमें हम करा सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दो, साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दो. दिस इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर. रिमेंबर, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर. ये डिफरेंस है दोनों. So when you do direct nitration, this is very oxidizing compound और NH2 super oxidized, भाई बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड उसमें कोई नाइट्रेशन नहीं हो पाता. तो यहाँ पे हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होता है, इट इज अ ब्लैक टार.
ऐसा करके एनसीईआरटी लाइन से, बाय द वे, सब एनसीईआरटी में एज इट इज दे रखा है। तो ब्लैक टार हमें यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट मिलता है। दूर दूर तक यहाँ पे जो भी पैरानाइट्रोएलिनीन या मेटानाइट्रोएलिनीन, एनिलीन, वो सब हमें मेजर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इसमें जो होता है हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स आते हैं। पैरानाइट्रोएलिनीन, टू, आई गेस NO2, NH2, NO2 और मेटा, एंड देन रिस्पेक्टिवली NH2, NO। इनके परसेंटेजेस याद रखने, याद लिटरली याद रखने। सो मुझे खुद याद नहीं होंगे शायद वैसे तो अभी। सो आई गेस लेट्स जस्ट सी, ये ज्यादा से ज्यादा कितना परसेंट बनेगा। 2% बन जाएगा अगर ये दो बन रहा है। और अगर मैं इसको लेट्स से 53 बना दूं, इसको 49 बना दूं, आई गेस दिस इज सेटल। ओप्स नो, इसको 47 रखूं, इसको 51 बना दूं। हाँ ठीक है, हो गया। इसको 51, इसको 47, इसको 2, शायद कुछ ऐसा रेशियो रहता है। डू चेक इट आउट इन एनसीईआरटी, बट या दिस इज द थिंग। सो अगर इसमें बोलता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ, नाइट्रेटिंग नॉट डायरेक्ट नाइट्रेशन, नाइट्रेटिंग मिक्सचर ऑफ एनिलीन या नाइट्रेशन यूजिंग नाइट्रेटिंग मिक्सचर ऑफ एनिलीन gives paranitroaniline as major product, yes, then it is the right statement. बट अभी के लिए फिलहाल ये गलत होता है। आगे देखते हैं। इन कपलिंग रिएक्शन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज ArN2+। यहाँ पे भी एक बहुत माइनर सी गलती हो गई थी, और बहुत ही बेसिक। कपलिंग रिएक्शंस बाय द वे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जे एडवांस। जे एडवांस में एज इट इज मेंशन्ड है कपलिंग रिएक्शंस, तो अच्छे से करके जाना। देखते हैं, देखो कपलिंग रिएक्शंस का मैं तुम्हें थोड़ा बेसिक चीज बता देता हूँ क्या होता है। कपलिंग रिएक्शन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज ArN2+। ब्रेक करो सेंटेंस को, एक एक वर्ड में गलतियां निकलेंगी। इन कपलिंग रिएक्शन, हम कपलिंग रिएक्शंस को देख रहे हैं। एक न्यूक्लियोफाइल है, वो ArN2+। ठीक है, ArN2+ बनाओ एक बार, और याद कर लो, या फिर कपलिंग रिएक्शन होता क्या है उस पर पहुंचो एक बार, क्या होता था कपलिंग रिएक्शन। कुछ ये होता है हमारा कपलिंग रिएक्शन। और यहाँ पे हमारे पास लेट से एक अल्कोहल है, मतलब बेसिकली फिनॉल है अल्कोहल के। तो यहाँ पे इसमें हमारी रिएक्शन होनी थी। ये जो होता है, ये डोनेट कर रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऊपर जा रही है काफी। तो ये जो है वो काफी इलेक्ट्रॉन रिच रिंग या इलेक्ट्रॉन रिच रेजेंट है, हमारा सबस्ट्रेट है। इस पे जो ये पॉजिटिवली चार्ज हमें जो दिख रहा है, काफी पॉजिटिवली चार्ज है ये वाली चीज। तो पॉजिटिवली चार्ज को पसंद क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन पसंद आएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल हुआ ArN2+ हमारी स्पीशीज, या इलेक्ट्रोफाइल हुई? इलेक्ट्रोफाइल हुई ना, ये तो एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जैसी तो होती है। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, ये है एक इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल अपने न्यूक्लियोफाइल के पास जाएगा। सिंपल है, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे जो अटैकिंग होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा ArN2+, ना कि न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये भी काफी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। In Friedel-Crafts alkylation reaction, polyalkylation is often a disadvantage। एनसीईआरटी लाइन है, कुछ समझाने का नहीं है, ऑब्वियस सी बात है भाई, क्योंकि आपने जब फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन कराया बेंजीन में, तो पहले CH3 बनेगा। अब जो CH3 है वो ड्यू टू +H+I, ये और एक्टिवेटिंग हो गया यहाँ पे। तो अब इस पे एक और CH3 बहुत जल्दी से लगेगा। अब ये और एक्टिवेटिंग हो गया, तो एक और CH3 और जल्दी लगेगा, एंड सो ऑन। यहाँ पे पॉली एल्काइलेशन हमें मिलेगा। पॉली एल्काइलेशन होता ही है, हमें दिख गया। और डिसएडवांटेज तो ऑब्वियसली होगा, बिकॉज कभी भी पॉली एल्काइल कंपाउंड जो है वो हमारे फेवरेबल नहीं होते। ठीक है, आप क्यों किसी पॉली एल्काइल कंपाउंड को फेवरेबल बनाओगे? जनरल केस में टोलुइन या फिर हमारा जाइलिन ही मेजर फेवरेबल केसेस होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रेडल क्राफ्ट अकाइलेशन रिक्वायर्स हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट देन फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, ठीक है, बहुत कुछ है। ठीक है, फ्रेडल क्राफ्ट अकाइलेशन यानी बेसिकली अकाइलेशन जो है उसमें हाइयर कैटलिस्ट चाहिए देन एल्काइलेशन। सोचते हैं इसके ऊपर थोड़ा देर। याद करो एकाइलेशन में क्या रिएक्शन होता चाहिए होता था हमें, RCO+ ऐसा कुछ होगा, और AlCl3 यहाँ पे यूज करते थे। अकाइलेशन में, एल्काइलेशन में क्या होता था? R+ होगा और AlCl3 यूज करते थे। एक AlCl3 तो हमें पता है, यहाँ पे जो Cl- होता था ऐसे करके, उसको निकालने के लिए होता था। यहाँ पे भी वो COCl हम यूज करेंगे, तो उसको निकालने के लिए होता था। हाउ ये ऑक्सीजन देखो, इसके पास लोन पेयर होंगे,
और यहाँ पे AlCl3 रह गया हमारा लुईस एसिड। तो ये इससे आके कोऑर्डिनेट करने का कोशिश करेगा। तो हर अकाइलेशन रिएक्शन में एक इक्विवेलेंट पे एक AlCl3 यहाँ लग रहा है, एक AlCl3 यहाँ बिजी है, और इस केस में सिर्फ एक AlCl3 से हमारा काम बन रहा है। तो यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि AlCl3 की मात्रा या फिर कॉन्सेंट्रेशन हमें यहाँ पे ज्यादा लेनी पड़ेगी अकाइलेशन रिएक्शन। तो वही यहाँ पे खा गए, और ये बहुत ही सही स्टेटमेंट है। बहुत ही दिमाग लगाने वाला स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में लिखा नहीं है कहीं भी है, पर एनसीईआरटी बेस्ड ही है ये चीज बहुत ही, क्योंकि ये रिएक्शन एज इट इज एनसीईआरटी में दे रखी है। और ये कोऑर्डिनेशन वाली चीज भी हमें बहुत बार देखी गई है, NH2 एनलीन वाले केसेस में और कई केसेस में। ठीक है, तो ये हमें पता रहना चाहिए था कि AlCl3 बीइंग अ लुईस एसिड विल मेक अ कॉम्प्लेक्स विद द ऑक्सीजन। इससे हमारे कोई कैटलिस्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब रिएक्शन में यूज नहीं हो रहा। ठीक है, ये करेगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेगा, पर जैसे ही यहाँ से जुड़ जाएगा अपना, वो वापस हट जाएगा। तो रहेगा तो कैटलिस्ट ही, वापस हमें पूरा अमाउंट मिल जाएगा। बट फॉर बेटर यील्ड ऑफ रिएक्शन एंड ऑल्सो फॉर बेटर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, हमें इस केस में एक्सेस में ज्यादा लेना चाहिए कैटलिस्ट को। ठीक है, आगे देखते हैं। एट्थ स्टेटमेंट, बेंजल्डिहाइड कैनॉट बी ऑब्टेन्ड बाय डायरेक्ट Friedel-Crafts acylation। बेंजल्डिहाइड कैनॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डायरेक्ट, ये डायरेक्ट वर्ड्स को बहुत पकड़ा करो भाई, है ना। फ्रिडल काफ अकाइलेशन, काइलेशन से। ठीक है, देखते हैं अभी। सो अगर हम इसको थोड़ा ढंग से देखें, तो बोल क्या रहा है कि मैंने बेंजीन लिया और उससे बेंजल्डिहाइड बनाना है। सही से समझना है इसको, देखो, ये बेंजल्डिहाइड है, और RCOCl, ये हमारा फॉर्मेट, प्लस AlCl3, ये हमारा फॉर्मेट है किसका, एक डायरेक्ट फ्रीडल क्राफ्ट अकाइलेशन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अकाइलेशन के वेरिएशंस हो सकते हैं अलग अलग, पर डायरेक्ट फ्रीडल क्राफ्ट अकाइलेशन जो होगी वो ये ही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आर कीप्स चेंजिंग, बाकी और कोई फॉर्मेट एक्सेप्टेबल नहीं है। नॉट इवन BR, नॉट इवन सम ZnCl2, ऐसा कुछ नहीं। दिस इज आर डायरेक्ट फ्रीडल क्राफ्ट अकाइलेशन, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे आर की जगह मेरे को बेसिकली H यूज करना है, तो मेरा काम बन जाएगा। होगा क्या, HCOCl लूंगा, AlCl3 लूंगा, AlCl3 इसको उठाएगा, HCO+ बनेगा, वो यहाँ पे आके जुड़ेगा इस पे आके बेसिकली, और ये हमारा कंपाउंड आ जाएगा। हाउएवर जो हम HCOCl लेते हैं, दिस थिंग इज सुपर अनस्टेबल। तो होगा क्या, ये हम यूज नहीं कर सकते इस रिएक्शन में, और इससे ये रिएक्शन हो नहीं पाएगी। सो वी यूज अ वेरिएशन ऑफ रिडल का फकाइलेशन, या हम कह सकते हैं कि एक अलग ही रिएक्शन होती है जिसका नेम तुम्हें ढूंढ के लाना है, बट मैं बता देता हूँ, बहुत ही इजी सी रिएक्शन है, जिसमें हम यूज करते हैं CO+HCl+AlCl3। यस, यू आर गेटिंग इट राइट। अगर याद नहीं है तो बिल्कुल ढूंढो, मिल जाएगा। ठीक है, आसपास की सिमिलर रिएक्शंस मिलेंगी, वो नहीं है, सिर्फ ये रिएक्शन तुम्हें देखनी है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl प्लस AlCl3 हम यूज करते हैं। इसकी मैकेनिज्म भी होती है जिसमें तुम्हें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट बेसिकली ये यूज करने में, अब देखो, CO+HCl इज बेसिकली HCOCl, और ये LCl3 भी हो गया। तो कहीं ना कहीं ये भी फ्रीडल क्राफ्ट अकाइलेशन जैसा ही लग रहा है हमें, बट ये डायरेक्ट फ्रीडल क्राफ्ट अकाइलेशन तो एटलीस्ट नहीं है, हम इतना तो वेरी श्योर है, कह सकते हैं। तो ये भी एक एनसीईआरटी स्टेटमेंट टाइप ही हो गया, और बहुत ही एक इजी सा स्टेटमेंट है, और बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी ऑब्टेन, सही बात है। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम आते हैं हमारे अगले स्टेटमेंट पे, विच सेज द नाइन्थ स्टेटमेंट हमारा जो है, विच इज फ्रीडल का रिएक्शन ऑफ एनी सोल व्हेन कैरिड आउट इन CS2 सॉल्वेंट और द प्रोडक्ट इज मेजर। अच्छा, बहुत ही ट्रिकी सा था यार, मतलब बहुत ही इजी। ये ट्रिकी बनाने की फालतू की कोशिश थी, अब मैं बताता हूँ क्या है। एनिसोल जो है, OCH3 है हमारा। इसमें जब भी आप कोई इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कराते हो, मैं बहुत जनरलाइज कर रहा हूँ इसको, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कराते हो जनरल केसेस में, तो इसमें जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा आएगा तुम्हारा पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी एक्स है, X+ हम अगर हम यहाँ पे करा रहे हैं तो। ठीक है, अब वेदर दिस इज सिंपल हेलोजिनेशन रिएक्शन,
whether this is FCA, whether this is FC अकाइलेशन या whether this is FC एल्काइलेशन, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, हमेशा ये यहीं आके लगता है, बिकॉज दिस ग्रुप इज क्वाइट बल्की। तो ये हमारे ऑर्थो पे नहीं लगा के पैरा पे लगाता है इसको, ठीक है। ऑल्सो नॉट टू रिमेम्बर, लाइक रेशियो भी तुम्हें याद करना हो तो, इन हेलोजिनेशन केसेस 90:10 जाता है, यार नहीं 90% हमारा पैरा आता है और 10% हमारा ऑर्थो आता है, इतना फर्क आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कंफ्यूज तुम्हें क्या करना चाहा कि CS2 सॉल्वेंट यूज कर लिया ना हमने, तो ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर आएगा, नॉर्मली होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी नॉर्मल कंडीशन है वही CS2 सॉल्वेंट में ही हम यूज करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था जैसे कि ऑर्गेनिक हमें सॉल्वेंट चाहिए होता है, तो CS2 इज अ गुड सॉल्वेंट फॉर दैट टू, एंड हेंस CS2 CCl4 कुछ भी यूज कर लो, ऑर्थो नहीं पैरा प्रोडक्ट ही मेजर होगा फ्रेडिल क्राफ्ट रिएक्शंस में। सो दिस इज ऑल्सो NCERT स्टेटमेंट एंड दिस इज रॉन्ग एक्चुअली, बिकॉज पैरा प्रोडक्ट इज मेजर, ठीक है। लास्ट देखते हैं 10th में। इन हेलोअरीन्स FCR reactivity is controlled by the stronger inductive effect and orientation is controlled by resonance effect। NCERT स्टेटमेंट है, मैं इसको, तुम्हें ढूंढना है इस स्टेटमेंट को लिटरली, पर ये स्टेटमेंट एज इट इज, लाइक मैंने कुछ भी नहीं किया, कॉपी पेस्ट ही कर दिया ऑलमोस्ट इसको NCERT से। सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, और एज इट इज ये जेई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, और उनके फिर 4 कॉम्बिनेशन बता देंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स या फॉल्स ट्रू ऐसा करके, और तुम्हें पूछ लेंगे, ठीक है। तो NCERT से एग्जैक्ट डायरेक्ट स्टेटमेंट्स उठाना ये बहुत ज्यादा किया गया है 21 एंड 22 में, तो 23 में भी किया जाएगा, ठीक है। सो इसलिए तुम्हें ऐसे स्टेटमेंट्स पे ग्रिप जब भी बनती है जब आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहे NCERT। तो अगर तुम्हें ये स्टेटमेंट याद था किस पेज पे है, कहाँ लिखा है, तो बहुत अच्छी बात है, एक बॉक्स में लिखा है मुझे जहां तक याद आ रहा है, ये बहुत पहले बनाया था क्वेश्चन। सो दैट्स इट, ये था हमारा पूरा डिस्कशन। आई नो आई केप्ट इट वेरी रॉ अनएडिटेड, बट यस दिस इज हाउ इट विल बी डन। और आई होप काफी कुछ वैसे सीखने का कुछ बहुत नया नहीं था, इफ यू आर डूइंग ऑर्गेनिक वेल इनफ तो तुम्हें ये सब चीजें आती होंगी। हाँ, तुमने कहीं गलतियां कर दी होगी पढ़ने में, लाइक यू माइट हैव मिस समथिंग, दिस डायरेक्ट नाइट्रेशन वाज क्वाइट अजीब, फिर ये न्यूक्लियोफाइल मिस करते ही बात खत्म, इधर डायरेक्ट मिस करते ही बात खत्म, तो ऐसे चीजें तुम मिस करोगे अभी थोड़ा बहुत, बट इन चीजों को पकड़ना ही हमें सीखना है। सो दिस वाज द सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन, और दैट्स इट, बाय।